Hello students, good morning to all of you. Hope you all are well. So this is exercise 25C and question number 1 to 4 I already completed in yesterday class. So today I am going to start from the question number 5. So students, in these questions you have to find the area of the parallelogram if the adjacent side of this parallelogram is given 60 meter and 40 meter and one of the diagonal of this parallelogram is 80 meter. So how can we find this ones? So we know very well that the area of parallelogram is equal to base into height, but in this questions base is given, height does not given. Okay, in place of the height here the diagonals of the parallelogram is given. So how can you find this one? So for this one, what you observe students here, so in a parallelogram if we draw a diagonal from one corner to another corner, one vertex from one vertex to another vertex, then it form the two कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल. यहाँ से दो कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल हमारे पास मिल जाते हैं एंड सो वी कैन जस्ट फाइंड द एरिया ऑफ द फर्स्ट वन ट्राइंगल, देन वी मल्टीप्लाई इट टू, then we will obtain the area of the whole parallelogram. So it means if this is the name of A, B, C, D, for example A, B, C, D is a parallelogram here, and students here A, B, C, D is a parallelogram and A, B, C and A, C, D are the two triangle, congruent triangle here. So we can say that the area of A, B, C, D is equal to twice the area of A, B, C. ठीक है, तो now we have to find, first of all we have to find the area of this triangle. ठीक है, so area of triangle for this one, just let us assume that A is equal to 60. इसको A assume करो, इसको B assume करो और इसको C assume करो. ठीक है, और इसके बाद क्या होगा फिर देखो. So students from here, so 2s is equal to, ठीक है, 2s is equal to a plus b plus c. okay, so a is equal to, what is the value of a, 60 plus 40 plus 80, यहाँ पे 2s आ जाएगा, is equal to 60 plus 40 100 plus 80 कितना हो जाएगा 180. so 180, so s 2 कहाँ आ जाएगा, इसके डिवाइड में आ जाएगा, इसको डिवाइड करो कितना आ जाएगा फाइनली 90. यहाँ पे क्या आ जाएगा 90 मीटर इज द वैल्यू ऑफ एस हियर. ठीक है, अब नाउ यूजिंग द हीरोइंस फॉर्मूला टू कैलकुलेट द एरिया ऑफ द ट्राइंगल. ओके, चलिए सो हीरोइंस फॉर्मूला, एरिया इज इक्वल टू, व्हाट इज द फॉर्मूला, एरिया ऑफ ट्राइंगल बोल सकते हैं, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी. A, B, C is equal to under root S, S minus A, S minus B and S minus C. ये हो गया. Now S under root S, what is the value of S? 90. So 90 minus A, what is A? 60. Okay, again 90 minus B, B is here 40. Again 90 minus 80. Okay, so under root, whole under root. So is equal to 90. Here 90 minus 60 is equal to 30. So multiply का साइन लगाओ. So 30 into 90 minus 40 is 50. Multiply 90 minus 80 10 हो गया. Now students जब फैक्टराइज दिस वन, हम इसको फैक्टराइज करेंगे. So इसको मैं लिख सकता हूँ 10 into 9 लिख सकता हूँ. यस सर लिख सकता हूँ. इसको क्या लिख सकता हूँ मैं 10 into 3. यस लिख सकता हूँ 10 into 3. इसको क्या लिख सकता हूँ मैं 10 into 5, 10 into 5 लिख सकता हूँ. चलिए 10 into 5 लिख दिया. और इसको क्या लिख सकता हूँ मैं 5 into 2 लिख सकता हूँ, 5 into 2 लिख सकता हूँ. ठीक है, नाउ टेक द स्क्वायर रूट. स्क्वायर रूट लेंगे, देखो 10 and 10 इसकी पेयरिंग हो गई है, इसको बाहर ले लो. सो एक 10 बाहर आ जाएगा. और किसकी पेयरिंग हो रही है यहाँ पे 3 और सेकंड 3, अच्छा 9 है, इस 9 को बाहर निकाल लो. इस 9 को बाहर निकालेंगे तो कितना आ जाएगा 3 बाहर हो जाएगा. ओके, अब नाउ दिस 5, ये 5 भी क्या होगा बाहर आ जाएगा. यस 5 भी बाहर आ गया. ओके, अभी और क्या आ रहा है बाहर, जस्ट चेक करो. 10 भी हो गया, 10 भी हो गया, 9 बाहर आ गया, 3 हो गया. ओके, एंड स्टूडेंट्स यहाँ पे अंदर क्या क्या छूटा हमारे पास, यहाँ पे 10 छूटा. ओके, यहाँ पे 3 छूटा. ठीक है सर, और यहाँ पे 2 छूट गया, यहाँ पे 2 छूट गया. ठीक है, चलिए सो यहाँ पे हम इसको लिख सकते थे 5 into 2. सो यहाँ पे हम 10 को लिख सकते थे 5 into
लिख सकता था ना, 5 इंटू 2। सो यहाँ से क्या हो जाएगा, 2 और 2 भी बाहर आ जाएगा, तो इट मीन्स 10 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 2 अंडर रूट। सो कितना हो जाएगा यहाँ पे, 10 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 2, और यहाँ अंदर कितना आ जाएगा, 2 बाहर आ गया, तो 5 इंटू 2 इंटू 3, 5 2 जा 10, 10 3 जा 30, 10 3 जा 30। सो कितना हो जाएगा, 10 3 जा 30, 30 प्लस 5 150, 150 प्लस 2 कितना हो जाएगा 300। सो 300 अंडर रूट 30। ठीक है, यही हमारे पास क्या आ जाएगा, 5 3 जा 15, ओनली 15 इज इनसाइड। ओके, 2 तो बाहर आ गया, 5 3 जा 15, 5 3 जा 15। सो 300 अंडर रूट 15 इज द एरिया ऑफ दिस ट्राइंगल। ओके, आई होप यू अंडरस्टूड दिस वन। ठीक है सर, ये तो हो गया है किसका, 300 अंडर रूट 15, ये हो गया एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC। सो इफ यू वांट टू फाइंड द एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम, सो मुझे इसका क्या करना पड़ेगा, ट्वाइस करना पड़ेगा। सो यहां पे मैं लिख सकता हूं, दिस इंप्लाइज एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 मल्टीप्लाई बाई द 300, 2 मल्टीप्लाई 300 अंडर रूट 15। सो फाइनली आप इसको सॉल्व करोगे, देन यू विल बी गेट हियर, हाउ मच यू गेट हियर, 300 इंटू 2 कितना हो जाएगा, 600। सो 600 अंडर रूट 15, 600 अंडर रूट 15 इज द एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम। ओके, चलिए नेक्स्ट question is here, the area of the parallelogram and the square are the same, the perimeter of the square is 84 centimeter and you have to find here in this questions find the, क्या लिखा हुआ है, फाइंड द हाइट ऑफ द पैरेललोग्राम। ओके, चलिए, सो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इज इक्वल टू एरिया ऑफ द स्क्वायर, द कंडीशन इज गिवन हियर, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम is equal to area of square and the perimeter of square is given here 84. So base of the parallelogram is 7 centimeter, then you have to find the height of the parallelogram. Okay, so first of all we have to calculate the area of the क्या करना, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम फाइंड करो। सो स्टूडेंट्स, एरिया कैसे फाइंड होगा, सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, एरिया ऑफ स्क्वायर फाइंड करना पड़ेगा। एरिया ऑफ स्क्वायर के लिए हमें क्या चाहिए, साइड चाहिए। साइड कहाँ से मिलेगी, पैरीमीटर से मिलेगी। सो पैरीमीटर वी नो वेरी वेल, पैरीमीटर इज इक्वल टू 4 इंटू साइड, 4 इंटू साइड फॉर्मूला होता है पैरीमीटर का। सो पैरीमीटर की जगह 84 आ रखा है, 84 इज इक्वल टू 4 इंटू साइड, वी हैव टू फाइंड योर साइड। सो साइड इज इक्वल टू 84 डिवाइड बाई द 4, इसको कट करेंगे तो कितना आ जाएगा, 21 सेंटीमीटर इज द साइड ऑफ द स्क्वायर। सो स्क्वायर की साइड आ गई 21। सो एरिया ऑफ द स्क्वायर विल बी कितना हो जाएगा, एरिया ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू साइड इंटू साइड, 21 मल्टीप्लाई 21 कितना हो जाएगा, 441 सेंटीमीटर स्क्वायर इज द एरिया ऑफ द स्क्वायर। नाउ एरिया ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, दोनों का सेम था ना, कंडीशन इज गिवन हियर। सो इट मींस द एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम विल आल्सो 441 सेंटीमीटर स्क्वायर। नाउ स्टूडेंट्स, वी हैव टू फाइंड हियर, फाइंड द हाइट ऑफ द पैरेललोग्राम इफ द बेस इज गिवन हियर। ठीक है, बेस दे रखा है। सो नाउ अप्लाई करो फॉर्मूला, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम is equal to base into height. Area of parallelogram is same is here 441 is equal to base, if the base is here 7 centimeter multiply by the height आपने कैलकुलेट करनी। सो h इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 441 डिवाइड बाई द 7। ठीक है, 7 से कट करो तो कितना हो जाएगा, 7 6 जा 42, 7 3 जा 21। ठीक है, हो गया। सो हाइट इज इक्वल टू 63 सेंटीमीटर, 63 सेंटीमीटर। आई होप यू अंडरस्टूड दिस क्वेश्चंस। ठीक है, यहां तक तो ठीक होगा, यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, वेरी इजी। Okay, now next question. Seventh question is here, the area, you have to find the area of rhombus if the base is 2.5 centimeter and height is 13.2 सेंटीमीटर। ठीक है, दोनों का मुझे क्या करना है, यहाँ पे दोनों की हेल्प से मुझे इसका एरिया फाइंड करना है। ठीक है सर, चलिए सो इसको फाइंड करते हैं। सो स्टूडेंट्स, वी हैव ए फॉर्मूला फॉर द रोम्बस, हाउ कैन यू कैलकुलेट द एरिया ऑफ रोम्बस। सो एरिया ऑफ रोम्बस
इज इक्वल टू बोल सकते हैं बेस, बिकॉज द रोम्बस इज अ टाइप ऑफ द पैरेललोग्राम, सो हियर वी कैन अप्लाई द फॉर्मूला डायरेक्ट, बेस इनटू हाइट, बेस इनटू हाइट. सो बेस इज हियर 2.5, हाइट इज हियर 13.2. दोनों को मल्टीप्लाई करो, 25 इंटू 2 कितना होता है 50, 5 कैरी, 25 3 जा 70, 25 3 जा 75, 75, 25 3 जा 75, 75 प्लस 5 80 कैरी 8. ओके, सो 25 1 जा 25 प्लस 8 कितना हो 33, सो 33 1 2 बिफोर 2 नंबर वी हैव to put the decimal, so 33 centimeter square is the area of rhombus, is the area of rhombus. Okay, चलिए, now next one is the next one question is question number 8. In this questions you also find the area of rhombus. यहाँ पे भी area of rhombus find करना है, but in this case AC and BD is given, so it means it is a parallel, it is a rhombus. ये हमारे पास एक rhombus है and A B C and D, ठीक है, A से लेके C, this is the diagonals, ये diagonals दे रखा है 8 सेंटीमीटर. Again is BD, so BD is given here, this is BD, BD is 10 सेंटीमीटर, 10, ये पूरा 10 सेंटीमीटर हमारे पास, तो इसका डायगोनल्स दे रखा. तो वी हैव वन मोर फॉर्मूला फॉर द एरिया ऑफ रोम्बस. एरिया ऑफ रोम्बस इज इक्वल टू 1/2 प्रोडक्ट ऑफ द डायगोनल्स. तो डायगोनल 1 मल्टीप्लाई बाय द डायगोनल 2, D1 इंटू D2, डायगोनल 1 मल्टीप्लाई बाय डायगोनल 2, ठीक है, और दोनों को डिवाइड करना है 2 से. सो चलिए, सो 1/2 इंटू डायगोनल 1, AC को ले लो डायगोनल 1, इट इज 8 इंटू BD, डायगोनल 2 इज BD इज 10. कट करो इसको, कितना टाइम्स कटेगा, चलिए 4 टाइम्स कटेगा. सो 10 इंटू 4 कितना होगा 40 सेंटीमीटर स्क्वायर इज द एरिया ऑफ रोम्बस. ओके, वेरी इजी क्वेश्चन स्टूडेंट्स, यहां तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, आई होप. वेरी सिंपल क्वेश्चन. Okay, so next question is question number 9. The area of rhombus is 72 centimeter square. If one of the diagonals is 18 centimeter, so what is the length of other diagonals? Okay, now ninth questions. So in ninth questions, what is given here? So area of rhombus is 72 centimeter and 18 centimeter is one of the diagonals. Area is given here 72 centimeter square and D1 is equal to 18 centimeter. One of the diagonal is given here. And students, here you have to find the area of the,
क्या निकालना, व्हाट इज द लेंथ ऑफ द अदर डायगोनल्स, ये मुझे यहाँ पे क्या करना है, फाइंड करना, वेरी इजी। ठीक है, सो क्या हो जाता है हमारे पास, एरिया ऑफ रोम्बस यूजिंग द फॉर्मूला एरिया ऑफ रोम्बस, सो एरिया ऑफ रोम्बस इज इक्वल टू 1/2 d1 multiplied by the d2. Area of rhombus is given here 72, 1/2 d1 is here 18 and d2 you have to find. So 2 9 जा 18, 9 को divide कर 9 से divide कर दो 72 को, so then you will be obtain the value of d2. कितना हो जाएगा, 9 8 जा 72, so d2 is equal to 8 centimeter. Okay, next 10th questions. Question number 10 is very easy, so try it. Okay, so I am directly going on the question number 11. The perimeter of the rhombus is 40 centimeter, perimeter is 40 centimeter and the length of the one diagonal is 16. Okay, perimeter, 11th questions. Perimeter is here, perimeter is given here and the perimeter is here. What is the perimeter? The perimeter of rhombus is 40 centimeter, 40 centimeter, and next one is क्या दे रखा, नेक्स्ट इज एंड द लेंथ ऑफ द वन डायगोनल इज 16 सेंटीमीटर, d1 इज इक्वल टू 16 सेंटीमीटर. सो हियर यू हैव टू फाइंड, क्या फाइंड करना है इस क्वेश्चन में, फाइंड द पेरीमीटर ऑफ अ रोम्ब, अच्छा फाइंड इट्स एरिया, फाइंड द एरिया ऑफ रोम्बस. ठीक है सर, फाइंड द एरिया ऑफ रोम्बस. सो यू नो वेरी वेल दैट पेरीमीटर जो हमारे पास रोम्बस होता है, इन रोम्बस ऑल साइड्स आर इक्वल, सो पेरीमीटर इज इक्वल टू p इज इक्वल टू 4 इंटू साइड, 4 इंटू साइड. सो पेरीमीटर इज हियर 40 इज इक्वल टू 4 इंटू साइड. सो साइड कितने आ जाएगा, 4 1 जा 4, 4 10 जा 40. सो साइड इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर. जो रोम्बस हमारे पास होगा उसकी साइड कितनी हो गई, यहाँ पे 10 सेंटीमीटर हो गई है. ओके, नाउ यहाँ पे d1 दे रखा, नाउ जस्ट प्लॉट द फिगर. यहाँ पे मैं एक फिगर प्लॉट कर रहा हूँ इसको अंडरस्टैंड करने के लिए. सो दिस इज अ रोम्बस and it is the diagonals. तो what is the property of rhombus? The diagonals bisect each other, means ये वाला बराबर बाइसेक्ट हो जाएंगे, ये दोनों बराबर क्या हो जाएंगे, इक्वली क्या हो जाएंगे, बाइसेक्ट हो जाएंगे. ओके, सो हियर d1 इज इक्वल टू 16. सो स्टूडेंट्स हियर ईच साइड इज 10 सेंटीमीटर, सो 10 सेंटीमीटर एंड 10 सेंटीमीटर इज ओके, सेम एज हियर 10 सेंटीमीटर एंड 10 सेंटीमीटर साइड हो गई है. नाउ स्टूडेंट्स वन डायगोनल इज 16, सपोज दिस इज द 16 सेंटीमीटर, दिस डायगोनल्स ए बी सी एंड डी, सपोज दैट ए सी इज इक्वल टू 16 सेंटीमीटर, द डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर. सो इसका मतलब हो गया कि एक पार्ट कितना हो गया, सो 8 सेंटीमीटर एंड 8 सेंटीमीटर में क्या हो गया, ये डिवाइड हो गया. ओ सी and OA is equal to 8 centimeter, 8 centimeter. Now students, one more property of the is here that the diagonals intersect, bisect each other with the 90 degree. ठीक है, यहाँ पर जो डायगोनल्स एक दूसरे को काटते हैं, यहाँ पे जो एंगल्स बनता है वो कितने का बनता है, राइट एंगल बनता है, इट मींस 90 डिग्री बनता है. सो अगेन इट मींस दिस इज द राइट एंगल ट्राइंगल. सो हियर वी आर यूजिंग द पाइथागोरस थ्योरम. हम यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे. देखो इस पोर्शन को, इतने पोर्शन को मैं क्या करूँ, अलग से ड्रॉ कर रहा हूँ. ओके, सो ये कुछ ऐसा बनेगा यहाँ पे. Okay students, so A, this part is A, this part is O, this part is O and this part is here B. So यहाँ पे AB is equal to 10 centimeter and students OB you have to find, but AO is given here, AO is here 8 centimeter. So very easy, first of all find the value of BO. So BO is equal to क्या हो जाएगा, पाइथागोरस थ्योरम लगाओ. So 10 का स्क्वायर इज इक्वल टू BO का स्क्वायर, BO स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर. सो 100 माइनस 8 8 64, टेक इट लेफ्ट साइड, 64 इज इक्वल टू BO स्क्वायर. सो 100 माइनस 64
ठीक है, 100 में से 64 करोगे तो कितना आएगा 36 इज इक्वल टू बी ओ स्क्वायर। सो 36 का स्क्वायर रूट लो, कितना हो जाएगा 6। सो इट मीन्स बी ओ इज इक्वल टू कितना हो गया हमारे पास 6 सेंटीमीटर हो गया। सो बी ओ इज 6 सेंटीमीटर। सो इट मीन्स दिस वन आल्सो 6 सेंटीमीटर। तो इट मीन्स द अदर डायगोनल विल बी बी डी इज इक्वल टू हमारे पास कितना आ जाएगा। सो बी डी इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ बी ओ। इट मीन्स 2 मल्टीप्लाई बाय द बी ओ कितना है 6 इज इक्वल टू कितना आ गया सर हमारे पास 12 सेंटीमीटर। सो 12 सेंटीमीटर is the another diagonals of this rhombus. Now it is easy to find the area of rhombus. So कैसे होगा? So area of rhombus is equal to 1/2 d1 multiply by the d2. So 1/2 into d1. What is the value of first diagonal 16 multiply by the d2 कितना है 12, d2 12. So 2 8 जा 16 and 12 8 जा 96 centimeter square is the area of rhombus. Okay, चलिए so okay students, so I am ending this class. So your homework is complete your classwork in your fair notebook and revise them. Okay, so thank you for watching this video. Thank you very much.